Now friends, our in case of intangible assets, we are more worse. Tangible में कुछ सुना तो है कभी, correct? But intangible में हमने कुछ भी सुना नहीं. We are in the dark, correct? कि एग्जाम में क्या आएगा, हमको क्या लिखना है. But believe me, you should pray कि एग्जाम में intangible का सम आए. Because they are very simple questions, they are very standard questions. They ask in intangible. And I know what they asked. Only 2 questions they asked. Bring me any paper. The secret key is what? They asked amortization problem and development and research. ये 2 ही क्वेश्चन फेवरेट है उसका बस. तो कोई पेपर उठा के देख. और थोड़ा 1-2 एरिया इधर उधर. तो इंटेंजिबल एसेट इज अ वेरी इजी चैप्टर. हाँ, स्टैंडर्ड हार्ड है लेकिन एकेडमिकली इजी है. यू बिलीव मी, मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगा. इंटेंजिबल एसेट एज 26, इंड एज 38. हाँ, ठीक है. आई सेट डोंट बी फेयर अबाउट अ चैप्टर. नाम डरावने है, टॉपिक डरावना नहीं. देखो इसमें कुछ ऐसी चीजें जो फालतू है, लेकिन वो फालतू हमें पढ़ना पड़ेगा जबरदस्ती. हाँ, ये पढ़ना पड़ेगा. आई कैन स्किप इट क्योंकि अदरवाइज यू विल नेवर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. और जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा. देयर आर 2 थिंग्स हियर, करेक्ट. कौन सी चीजें जो एग्जाम में नहीं आएगी फिर भी पढ़ना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो है डेफिनेशन, करेक्ट. 1 मिनट. Don't conclude anything. Wrongly conclude anything by seeing what I am writing on the board. There are 2 definitions. One is what is asset. आपको लग रहा हो कि एसेट इस चीज सर डिफाइन कर रहे हैं. इफ यू रिमेंबर, once I defined liability and I completed the entire chapter. Now this will help you out, but not that much as you define liability. Because to prove provision, you should prove liability. Correct? What is an asset? Provision was a handicap liability in terms of estimation required, and as intangible is a handicap asset, you require to prove it. It's an asset. What is an asset? If you can prove, you have 50% proved intangible. Every intangible should be an asset first, then intangible asset. 2 definitions are there. समझ में आया? एसेट के 4 फीचर्स होते हैं. नंबर 1 इकोनॉमिक रिसोर्स. नंबर 2 पास्ट इवेंट. नंबर 3 बेनिफिट्स कंट्रोल्ड बाय द entity. And number 4 benefits should flow. अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये टेबल भी है, ये एसी भी है, कोई भी एसेट है, कोई भी एसेट. इंटेंजिबल भी नहीं. बट कैन यू प्रूव इंटेंजिबल? हाँ, आई कैन प्रूव इंटेंजिबल बीइंग एन एसेट, देन इंटेंजिबल एसेट. A stock, a bag is also asset. Economic resource. This bench is economic resource. Why? It has got an economic benefit for me. कारोबार में मदद करता है. Second, past event. Once I have constructed this bench in my premises 6 years back. Benefit control by entity. It gives me benefit. I restrict others to use it. How can you prove you restrict others? I lock my office when I go out. No one can use it. I keep CCTV camera. In fact, I keep some well-maintained dogs outside. Security guard. हाँ सर, ये सब करना पड़ता है to protect my asset. That is control. And the सबसे main point इस chapter का है वो है control. If you cannot prove control, you cannot prove an asset. बाकी इधर कुछ खास नहीं. Control होना चाहिए. How you control AC, projector? You have
a security compliance. In which way you check out? Otherwise, next day it get caught. Robber will come, thief will come, and they take this away. Intangible में भी control होना चाहिए. तो ही तो asset है वो आपका. Benefit should flow. What benefit this bench gives me? This gives me service income. Through this I can earn my tuition income. This is a feature of a tangible asset. Now can you prove this for an intangible asset? Let's see. Intangible asset में भी 4 features हो सकते हैं. याद रखना intangible को इसके बाद और 4 कंडीशन प्रूव करना पड़ेगा वो intangible की. ये तो जनरल एसेट के. सबसे पहला इकोनॉमिक रिसोर्स. स्टॉक मेंबरशिप कार्ड. या पता है क्या होता है? 1 करोड़ का मेंबरशिप कार्ड आता है. 1 करोड़ दे देगा, मेंबरशिप कार्ड ले लेगा, उससे आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते. मैं तुम नहीं कर सकते. यू टू बाय दैट कार्ड फ्रॉम NSE एंड बिकम द होल्डर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. उससे क्या फायदा है? पब्लिक का पैसा लेकर ट्रेड कर सकते हो, कमीशन मिलता है आपको. फिर इकोनॉमिक रिसोर्स. कार्ड इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स. सेकेंड, पास्ट इवेंट. वो कार्ड बनवाने के लिए मुझे ब्रोकर बनना पड़ा. हाँ, थोड़ा खेलना पड़ा ट्रेड में. सडनली आई कैन ब्रिंग द कार्ड. पैसा फेंको नहीं मिलेगा आपको. सो स्ट्रगल टू गेट अ कार्ड. जस्ट लाइक a license. Yes. Third, benefit control over entity. I have the password. Only I can use the card. Even otherwise, if they take the card, stole away, I have all the keywords with me. It can only be operated through my hand and my tips of my finger. Or it can be operated through some encryption included inside. Very well devised. Otherwise, I may lose my customer's value and all. Definitely, yes, sir. Control is to be there. Yes. McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Domino. Why they are topmost brand? Because they have the control over the resources. Have you seen McDonald's, Coca-Cola printing their ingredients in the bottle? Never they print it. Never they print it. If they start printing it, every store will have manufacturing of Coca-Cola, manufacturing of McDonald's. Everyone will do it. The formula cannot be copied. That is control. You control your asset, you prove that it's an asset. Correct? Stock membership card, password. But most of the intangible assets are controlled by legal control. Your copyright, your franchise right, your patents are controlled by the government. You pay them a big amount to others cannot utilize it. If they start copying, I'll get huge money from them. That's control. Yes. Mostly control emanates from legal control. Benefit should flow. Stock membership card, I get what benefit? I get commission income and some type of fees on funds. That's my benefit flow to me. I proved that a stock membership card is an asset, not intangible. पहले ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए. So any intangible can be proved. Hi, intangible. If you can't prove it, then it's not an asset. चलो prove करते. कुछ asset है भी नहीं. Customer list. हाँ, cause I got long list of customer. Is it an asset? हाँ, intangible asset. Prove it. Economic resource. This list, anyone can ready to buy it. Past event. 20 years I am in the business. I created these many followers. Benefit control. This customer can run away tomorrow. I don't have a control. Hence, it is not an asset. I have shown you India map. I'm a transport company, very big, Mahindra and Mahindra. I shown all the areas where I control the geographical market. No one can enter, dare to enter. Can the market share be intangible asset? No, because you don't have control over the market area. But on the other hand, you have purchased an area and said, no one can operate here. I have given fees to some competitors under a legal document. Then you can capitalize it because there's a control over there. That is known as non-compete fees. Try to understand, please. Yes, non-compete fees is an intangible asset. Benefit flows to you, customers comes to you, that's benefit. And you're mad to pay them the fees. You know the customer will not go to them, will come to back to me. They'll hunt for the service provider. There's no one because I have kicked out everyone by paying a hefty price and I filled their mouth by the money, remember. And now legally they won't enter in this area. Otherwise they get caught in the trap of violation and all. Non-compete fees to that. Yes, 100% yes. It is one of the, today's market, it is one of the flying intangible asset.
पहले लेकिन बच्चे एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनती है ना नॉन कॉम्पिटिशन. हाँ पूरा And एग्रीमेंट is it legal? I mean, is it valid to do that? Yes. Why not? Because See. you're basically stopping somebody from doing business. No, but if you're paying them, You are a competitor. Your coaching class is in front of me, and both are running neck to neck, cutthroat. Correct? My scissor on your neck and your scissor on my neck. That much of working, neck to neck. Now suppose once we decided in our evening tea break, we decided that I'll pay you 1 crore and you should not teach for next 5 years in this geographical area. That's all. Enough. All features are chasing you. correct. Profit और PGBP में taxable भी. वो सब मुझे नहीं मालूम बट हम अकाउंट्स में ऐसा पढ़ाते हैं इनकम टैक्स के लिए डिफरेंट मूड वी डोंट हैव थॉर्न्स दे हैव थॉर्न्स करेक्ट वी कांट डू एनीथिंग नाउ हैव आई प्रूव्ड इंटेंजिबल नो यही बकवास है जो एग्जाम में नहीं आता लेकिन पता होना जरूरी है ठीक है क्या है इंटेंजिबल एसेट आप अगर आपके पास पेपर को देखो 2 बार शॉर्ट नोट आया है इंटेंजिबल एसेट पर लोग बकवास लिखते हैं इंटेंजिबल वी कैन नॉट सी वी कैन नॉट टच माय गॉड सी द डेफिनेशन व्हाट दे गिवन आर यू बाबा टू टच एंड लाइक अ घोस्ट यू सी द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल द फीचर्स गिवन बाय देम हैव अ लुक एट लीस्ट व्हाट दे हैव गिवन ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपर्ली यू आर नियर टू द आंसर देन ना एसेट का मतलब मालूम पड़ गया आपको फिर Cannot touch this. हाँ we cannot see goodwill is the best example first of all goodwill is removed from this chapter goodwill is covered by S14 क्या बोलने का यार सच्ची में never write goodwill is covered they get completely in fact they hate goodwill to come in this chapter अच्छा सबसे बड़ा सबूत बताओ सबसे बड़ा सबूत उनका स्कोप पढ़ना स्कोप पे क्या लिखा दिस चैप्टर एक्सक्लूड गुडविल खत्म हो गई बात मैं क्या बोलूंगा Do you know why goodwill is not an intangible asset? There are 2 reasons. Number 1 is specifically covered by AS14 and the difference of PC and net asset. And second reason, goodwill cannot fulfill one of the condition which is yet to come. वो एक कंडीशन को ऐसे goodwill मार खा जाता है हाँ Goodwill asset है लेकिन intangible asset. नहीं इंटेंजिबल भी है बट इस चैप्टर में नहीं है ये स्टैंडर्ड में तो नहीं है ऐसा ना एक मिनट प्रोविजन ऑफ टैक्स इज अ प्रोविजन बट इज नॉट कवर्ड बाय 20 राइट हाँ इट्स लाइक दैट now I'll tell you investment property is an asset it's a property but it's covered by 16 no ऐसा समझ में आ गया if somebody asks you is goodwill intangible asset you should say yes but if further asks you it's covered by AS26 no answer is no then got it now to your surprise in fact if you don't know goodwill is not covered by the chapter सर गुडविल कहाँ मार खा जाता है एक पॉइंट आएगा अभी आगे देखो वहाँ मार खा जाता है एक ऑथर ने क्लियरली लिखा भी था बहुत पहले डॉल्फी डिसूजा कि इसी वजह से गुडविल इंटेंजिबल एसेट नहीं एक कॉपी कर लो ऊपर का हाउ टू डिफाइन कंट्रोल कंट्रोल कैसे डिफाइन करते हैं कंट्रोल का मतलब होता है you should have an ability or power to use the asset and restricting others to use the asset या दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तुम तो यूज करते ही हो दूसरे को यूज करने नहीं दे रहे उसको कंट्रोल कहते हैं Got it? हाँ now what is intangible asset let's raise the curtain from the definition of intangible asset four points number 1 every intangible should be non-monetary. What is non-monetary? जो मैंने AS level में पढ़ाया था. Other than monetary. What is non-monetary? Table is non-monetary. Load is monetary. Data are monetary. Intangible should be non-monetary. Stock membership card. Example. Continuous example. I bought at 1 crore. How many years back? 2 years back. Check the value in the market. So 1 crore 28 lakh. Value of change, non-monetary. Monetary is that item where the value is fixed. Convert to cash. Yes. All intangibles should be non-monetary. Sir, goodwill is non-monetary. हाँ, goodwill की value change होती है non-monetary.
लोन कभी चेंज नहीं होता, लोन फिक्स रहता है, मॉनिटरी। स्टॉक मेंबरशिप कार्ड नॉन मॉनिटरी, पेटेंट नॉन मॉनिटरी, कॉम्पिटिटर आ गए, पेटेंट की कीमत कम हो गई, नॉन मॉनिटरी, कॉपीराइट नॉन मॉनिटरी। हाँ, नहीं होती है, एस्टिमेट चेंज हो सकते, वैल्यू चेंज नहीं होती ना। टैक्स प्रोविजन इज मॉनिटरी, खाली एस्टिमेशन चेंज होता है, वैल्यू उसकी वही होती है। शेयर इज नॉन मॉनिटरी, वैल्यू चेंज होती है मार्केट, फिर correct, due to the market up and down the value changes. All licenses are non-monetary, goodwill is non-monetary, copyright non-monetary, patent non-monetary, intangible should be non-monetary. Second, intangible should be identifiable. goodwill का ये फीचर गलत है, ये यहाँ goodwill मार खा जाता है। goodwill cannot be identified, it is identified. If you can sell an asset, rent an asset, sell, rent or exchange without disturbing the other asset, then that asset is said to be identifiable, otherwise no. ये देखो, ये बॉटल है, पूरे तैयार क्लास में फैन ये बेचने की जरूरत है क्या? इसको अकेला जाके बेच के आ सकता हूं मैं? फिर इसको आइडेंटिफाइबल कहते हैं। सेपरेटेबिलिटी इज नॉट आइडेंटिफाइबिलिटी। You can sell, rent and exchange without disturbing other asset. Asset is said to be identified. Can you do this? Then the intangible can be recorded. Goodwill does not have this feature. Because when have you seen anyone buying only goodwill? Never, never. You have to buy the business along with goodwill. I hope you are getting it. If there is no business, you can't pay goodwill, yeah? You know very well. Goodwill is attached. Goodwill cannot be separated. Sir, brand can be separated and sold. Brand and goodwill are two different things. See, suppose Imami has got 200 brands. 200 brands. Navratna Til is one of the brands. They can sell. They don't sell other assets and machines. Not required. They खाली brand बेच सकते हैं। कई कंपनियां brand बेचती है सिर्फ। It is identifiable. So stock membership card identifiable. मेरे 3 बिजनेस है, फाइनेंसिंग, advisory services and stock membership trading. I can sell stock membership. I do not sell my other facilities. Intact. इसको कहते हैं identifiability. कितना simple point है. Third point, very simple. Every intangible should not have any physical existence. Physical existence होता है, बहुत कम होता है. To store intangible, like CD, to store the intangible motion value. That motion value. CD is a small value. So tangible is a negligible value. Intangible is big value. That is intangible. A robot is there. Robot. The software inside is of 3 lakh. And the outer coverage of robot is just a ordinary iron, which you can buy from the market at 500 rupees. That is intangible, which is heavy or tangible. Because that hardcore area, that part of the body, is necessary to store the intangible. I'm just talking about it. हाँ? CD में मतलब कोई सॉफ्टवेयर है तो वो फिर कोई क्या है? सॉफ्टवेयर है तो वो इंटेंजिबल है। तो मशीन इज टेंजिबल, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर नेग्लिजिबल होता है, इट्स ओवरऑल टेंजिबल। टैली के साथ बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जो लैक्स में टैली या फिर देखो लैपटॉप पे टैली डाला ना, तो टैली अलग चीज है, लैपटॉप अलग है। लैपटॉप में अलग अलग टैली भी आता है, तो सब मिला के इंटेंजिबल है, अलग अलग इंटेंजिबल है। So the program can run for 3 years, तो 3 साल का इंटेंजिबल है, वो लाइसेंस है, ठीक है। कंट्रोल इज देयर, पासवर्ड है, करेक्ट, बेनिफिट मिल रहा है, टैली का यूज हो रहा है, करेक्ट। अच्छा, नाउ फोर्थ पार्ट इज you should be able to get the benefit from the asset, should not sell the asset. स्टॉक मेंबरशिप कार्ड से बेनिफिट मिलना चाहिए, तो बेनिफिट तो यहाँ पर भी है, वो अलग है, वो बेनिफिट मिलना चाहिए, ये बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन उसको बेचना नहीं चाहिए। आप बेचेंगे तो इन्वेंट्री बन गया वो आपका, इंटेंजिबल एसेट में नहीं आएगा। फिर शुड नॉट सेल इंटेंजिबल, शुड यूज द इंटेंजिबल टू गेट सम बेनिफिट, करेक्ट, यस। अगर इंटेंजिबली बेच दिया, खरीद स्टॉक मेंबरशिप कार्ड बाय का सेल किया, तो इन्वेंट्री हो गया, इंटेंजिबल में नहीं आएगा। इंटेंजिबल है लेकिन 26 में नहीं आएगा,
4 डेफिनेशन इंटेंजिबल के, एक नॉन मॉनिटरी, दूसरा आइडेंटिफाइबिलिटी, तीसरा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, चौथा हेल्ड फॉर एनी यूज बट नॉट हेल्ड फॉर सेल. हेल्ड फॉर सेल दैट इज इन्वेंटरी. इन्वेंटरी इज कॉल्ड बाय इंडेस 2 एस 2. समझा? स्टॉक मेंबरशिप है, हाँ है मेरे पास, ये बेचा नहीं है उसको. उसको बेचने का नहीं, उसको बेचा नहीं तो उसमें बेनिफिट मिलेगा लेकिन वो इंटेंजिबल में नहीं आएगा. एसेट है लेकिन इंटेंजिबल एसेट नहीं है. इट शुड बी हेल्ड. ये फर्नीचर है, बेच रहे हो क्या? नहीं, यूज कर रहे हो ना. मैं लाके बेचा, लाके तो फिर इन्वेंटरी हो गया, वो इंटेंजिबल में थोड़ी आएगा. एज यू कैन फाइंड अ फर्नीचर कैन बी इन्वेंटरी, कैन बी प्रॉपर्टी प्लान, इंटेंजिबल कैन आल्सो बी इन्वेंटरी इफ यू आर गोइंग टू सेल इट. एक बात बताओ, इसमें सॉफ्टवेयर है. अब इसमें से मैं सीडी निकाल रहा हूँ, छोटा सीडी, 1 लाख सीडी, उसमें सॉफ्टवेयर भर रहा हूँ, तो वो इन्वेंटरी हो गया, वो इंटेंजिबल नहीं है. Because the objective CD is still in the market. Sir, what about software CD? This is intangible asset because I'm using it. The intangible should not disappear from your business. Are you getting or not? A cow is an asset, but a milk is not an asset. Milk is inventory because sell milk. Keep the cow, sell the milk. Keep the hen, sell the egg. Keep the intangible, sell the software. Got it? Now, features of intangible asset, which you have proved it now. 8 features, 4 asset, 4 intangible. एक मिनट. दूसरा डेफिनेशन क्या था भाई? हाँ, व्हाट इज व्हाट? इंटेंजिबल एसेट ना. पॉइंट नंबर 1 क्या था? नॉन मॉनिटरी. सेकेंड, आइडेंटिफाइबिलिटी. What is this? You can rent, you can sell, you can exchange, correct? Without disturbing other assets. Other assets. Third क्या था? Without physical substance, correct? Fourth, held for, है ना? You can held for production, you can held for service income, you can held for some benefit. You can't held for sale. इन्वेंट्री बन जाएगा. सर्विस अच्छा, हाँ, रख सकते, नो प्रॉब्लम. एक सॉफ्टवेयर है जो खाली सर्विस दे रहा है, नो प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वेबसाइट इन माई ऑफिस, स्टाफ कैन यूज इट, दैट्स इंटेंजिबल फॉर माई यूज सर्विस. ठीक है? जितनी कंपनी के वेबसाइट्स होते हैं ना, वो इंटेंजिबल है. दे कैन टेक बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years. Got it? डेफिनेशन समझ में आ गया? अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल. फिर क्या पढ़ेंगे? डेप्रिसिएशन. फिर क्या पढ़ेंगे? वैल्यूएशन. खत्म. हाँ, है, इसमें भी है. उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, वो अलग बात है. ठीक है? अब तुम बुक लेके पढ़ोगे ना, 15 पेजेस है, कुछ समझेगा उसने क्या लिखा हुआ. बट व्हेन यू अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट यू रीडिंग. वो गलत नहीं लिखा है उसने. नोबडी इज रॉन्ग. Nobody has given you that specs to read the book. That we lack. We read blindly, like an owl in the night. Now we'll go for the recognition principle of intangible. ठीक है? कैसे रिकॉर्ड करना है?
सर अभी किए थे वही परचेज वही, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स बदलेगा कि वो टेंजिबल था। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, already warned you, I have a very beautiful handwriting. I said once, sometime I can prove it very well, remember, correct? And nobody can guess it at what time. रिकॉग्निशन प्रिंसिपल की बात चल रही है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, इस चैप्टर बूढ़ा हो गया है एकदम, आपको खाली रिवाइज करना है और कुछ नहीं ढंग का। और कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको पहले बता दूंगा इसके अंदर। सी यार ये सब नहीं आता एग्जाम। हाँ, इस पर शॉर्ट नोट आया है, इस पे शॉर्ट नोट 2 बार आकर के ऑडिट पेपर के अंदर, पीपल राइट ब्लंडर्स। लेकिन अगर वो शॉर्ट नोट पूछते हैं तो उसमें हमें सिर्फ यही 4 पॉइंट हाईलाइट करना है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, और ये 4 पॉइंट, देयर इज नो 5th पॉइंट, आई सीन द शॉर्ट नोट वेरी वेल। पॉइंट सो यू राइट ईच पॉइंट एंड अरे मैडम ये डायरेक्ट का डेफिनेशन है, आई एम नॉट फ्रॉम माय साइड। हाँ, अरे दे आर हैप्पी टू गेट दिस 2 पॉइंट आल्सो, दे डोंट गेट इट। When there is a competition in the beggars in the near mandir, to get 1 rupee is also a big achievement. It's like that. बहुत सारे बेगर होते हैं, एक को पैसा नहीं मिलता है जल्दी, आइसोलेटेड बेगर को मिल जाता है। तो वही बात है यहाँ पर सही आंसर लिखना ये वाला, अरे वो तो इम्पॉसिबल है यार, बच्चा ध्यान ही नहीं देता उसके पॉइंट्स पर, ध्यान लिखता या कॉमन सेंस यूज करता है वहाँ पर, उसको ऐसे कॉन्क्रीट पॉइंट नजर नहीं आते। नाउ रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कैसे करना चाहिए? सबसे पहला कानून तो ये है इंटेंजिबल का, ऑल इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, नो फेयर वैल्यू। और कॉस्ट नहीं है तो टाटा बाय बाय, यू कैन रिकॉर्ड इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल शुड सफर थ्रू 3 कंडीशन, इट शुड बी एन एसेट, कई एसेट में कंट्रोल नहीं होता है इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं किए। स्टाफ ट्रेनिंग इज इंटेंजिबल एसेट, आई स्पेंड 5 लाख रुपीज ऑन स्टाफ ट्रेनिंग बट आई कैन रिकॉर्ड, व्हाई सर? बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल। सर अगर स्टाफ के साथ एग्रीमेंट कर दिया कि तुम जा नहीं सकते हो, वरना बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, देन यू कैन रिकॉर्ड। इन वन ऑफ द कंपनी दे हैव प्रूव्ड इट, पायलट्स को उन्होंने ऑपरेशन से पहले 6 महीना स्ट्रिंजेंट ट्रेनिंग दी, एक बॉन्ड साइन करवाया, बैकिंग करवाया, बॉन्ड बैंक बॉन्ड, तो कंपनी ने इंटेंजिबल रिकॉर्ड किया, वो कंपनी कर सकती है बस। तो सर ये चीज जो वो लोग ये बॉन्ड वगैरह साइन करा के जो हम ये एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये एसेट को हमें we have to amortize it over the life of the loan. I'll show you that. It's yet to come. See, first you define, then you capture, then you record, then you depreciate, then you revalue. The story is this. What do you do in inventory? Intangible asset. फिर अब हम रिकॉग्नाइज कैसे करें? करेक्ट, इसको बहुत इंटेलिजेंट तरीके से आंसर देना है पेपर में। देखो एक चीज ऐसी है इसके अंदर जो एग्जाम में कभी नहीं आती, वो आएगी भी नहीं, लेकिन पढ़ना है क्योंकि वो सपोर्ट करती है। दूसरी चीज एग्जाम में बहुत आती है, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। क्या है बताता हूँ। रिकॉग्निशन को पहला कानून ये है, शुड रिकॉर्ड एट कॉस्ट। इफ यू कांट डिटरमाइन कॉस्ट, टाटा बाय बाय, यू कांट रिकॉर्ड इट एज एसेट। Correct? Cost. Now, we divide this in 2 parts. एक मिनट, don't conclude everything. Let me complete the chart. 1, 2. ये क्या है सर? 2, 1, 2. I tell you. The first part is known as purchase. Purchase. Second part, generated. Intangible purchase by you, है ना? और intangible asset internally generated. ये बहुत रिस्की और इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम। परचेज एंड जनरेटेड। When you purchase an intangible asset, how do you record it? There are 2-3 possibilities. Number 1, if you purchase by paying cash, what do you do it? Purchase price plus taxes, है ना?
प्लस स्टैम्प ड्यूटी, अदर चार्जेस, हो गया खत्म। ट्रेड डिस्काउंट लेस, रिफंडेबल टैक्स लेस, पुरानी कहानी हुई। करेक्ट। कौन से टैक्सेस आते हैं? हाँ, अरे देयर आर मेनी इंटेंजिबल, बाय एंड पे जीएसटी, सॉफ्टवेयर यू पे जीएसटी ऑन दैट, रिफंडेबल फिर नहीं आएगा उसके अंदर। सर मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा और सामने जीएसटी का सेट ऑफ मिल रहा है तो फिर टैक्स नहीं आएगा आपके कॉस्ट में, और नहीं मिल रहा है तो फिर आएगा। ठीक है, आज तो हर एक पे भरते हैं यार, छोटे सॉफ्टवेयर पे जीएसटी भरते हैं। अरे मैकडोनल्ड का बर्गर पे 9 रुपए का जीएसटी लग रहा है, 1 रुपए का 6 रुपए का जीएसटी लग रहा है, फिर 60 रुपए का बर्गर पे, हर एक पे जीएसटी। जीएसटी इज जस्ट लाइक इट इज स्मॉल हेयर ऑन द हैंड, स्मॉल हेयर इज देयर, दैट मस्ट स्टिक टू द बॉडी। करेक्ट, यू कैन सेपरेट इट आउट। once you paid a bill, बिलिंग आ गया और जीएसटी आया अंदर। मंदिर के प्रसाद पे भी जीएसटी है, मैंने सुना है। बड़े मंदिर पे जाओगे ना, हाँ बड़े मंदिर के यू आस्क योर डैडी ओनली इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज इनके डैडी को न्यूज जल्दी आ जाएगी क्योंकि जीएसटी मोदी सर की तरफ से आ रहा है, तो शी नोज वेरी वेल। शिरडी वहाँ पे का वो लड्डू जो बनते हैं उसको दे पे जीएसटी, मैं सरप्राइज हो गया है। नहीं, कुछ कमर्शियल टाइप के रिलीजियस एक्टिविटी को कवर किया है। ये मेरे को है ना एक दो जने, आई नॉट सीन इट बट समबडी हैज टोल्ड मी कि प्रसाद पे भी जीएसटी लग रहा है अभी, तो ऐसा ही मे नॉट बी रॉन्ग दैट मच, लगता होगा कहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है भाई ये तो प्रसाद है ही नहीं, भाई द वे दिस कमर्शियल बिजनेस। पेटीएम नेट है तो जबरदस्त मार्केट में बिकता है, ट्रेडमार्क, ब्रांड, लोगो, हाँ उस पर आधा धंधा तो फ्रेंचाइजी पे चल रहा है, बिना जीएसटी के नहीं होता है दोस्त, यहाँ पर याद रखना। तो यू हैव टू इंक्लूड इट सेट। हाँ हाँ, उन्होंने अभी लिमिट बढ़ाया ना जीएसटी का, अभी 40 लाख कर दिया। तो ट्रेडर्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया वो फंस ही गए हैं। खैर हमें उस स्लैब एरिया में नहीं जाना है, बट यू शुड अज्यूम देयर सम टैक्सेस प्रिवेलिंग, करेक्ट, मे नॉट बी जीएसटी, मे बी एनी अदर थिंग। तो ये ऐड करोगे। और क्या है सर परचेज वाले में? परचेज वाले में और थोड़ी पॉसिबिलिटी है, इफ यू बाय द एसेट इन एक्सचेंज, है ना, यू शुड रिकॉर्ड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट। सर उसमें इनकमिंग था क्योंकि वो इंडेस था, इसमें इंडेस नहीं है, तो इनकमिंग एसेट इधर आउटगोइंग एसेट है। उल्टा हिसाब है, उल्टा हिसाब है। माइंड वैल्यू उधर इनकमिंग था, इधर आउटगोइंग है। व्हाई इज डिफरेंट? बिकॉज दैट इज रिवाइज्ड, दिस इज नॉट येट रिवाइज्ड। बिफोर रिविजन इवन दैट वाज लाइक दिस, फेयर वैल्यू ऑफ द आउटगोइंग एसेट। So I am buying from you a software and giving you this mobile. आपको it has commercial substance. तो my incoming asset fair book recording value will be fair value of outgoing in this chapter. Correct? So what about two condition? वो इस सब में नहीं दिया है, condition का सम इसमें नहीं आएगा, दिया ही नहीं तो क्या करूँ मैं? Third, when you record by purchasing through government grant. What is government grant? I purchase a fishing right. कितने का राइट है फिशिंग राइट? 6 महीने के, 6 साल के लिए भाई ऐसे फिशिंग कर सकता है कोई, और फटकेगा भी नहीं वहां पर। फटकेगा तो जुर्म है, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यू आर डिबारिंग द एरिया। तो कितना पे किया सर? 6 लाख पे किया, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे कंसेशन दिया, ओनली 1 लाख आई टू पे। यस, दैट्स कंसेशनल प्राइस। गवर्नमेंट से खरीदेगा तो कंसेशन पे रिकॉर्ड करना है, आइडेंटिफाइड प्रॉपरली। सर इस पर कुछ एक्सपेंस इनकर किया तो ऐड कर सकते हैं, फ्री में मिला है तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का, तो पहले भी आपको पता है। अब इंटरनली जनरेटेड, ये बहुत डेंजरस है, इसको 2 में डिवाइड करना है। हाँ, एक, अगर वो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है तो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड marksheets, brands, marksheets, trademarks, गुडविल भी ले लेते हैं समझने के लिए, करेक्ट, पब्लिशिंग टाइटल्स,
याद रहे एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड मिला इंटरनली जनरेटेड, मेहरबानी करके उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इट इज बैंड फॉर रिकॉग्निशन. इट इज प्रोहिबिटेड टू बी रिकॉर्डेड. एक सेकेंड. स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. Reason is simple, because entity cannot calculate the cost. मैं समझाता हूँ. ठहर. अगर किसी कंपनी ने इंटरनली ब्रांड बनाया हुआ है, they can't record that intangible. Sir, purchase brand, you paid a price. Can you record your own brand in the books? जियो वाला कंपनी जियो ब्रांड रिकॉर्ड कर सकता है. क्वेश्चन इज व्हाट्स द कॉस्ट. सो ये क्या है सर? ये ब्रांड टाइप चीज़ है, सब कंपनी के नाम वाले हैं. ये कंपनी का ट्रेडमार्क, कंपनी का मार्कशीट. व्हाट इज मार्कशीट? मार्कशीट का मतलब होता है, देखो मेरे कंपनी ने एक ऐसा कोई डिजाइन क्रिएट किया है, हमेशा ये डिजाइन में प्रिंट करता हूँ. यू कैन रिकॉर्ड दैट इन द बैलेंस शीट. करेक्ट. पब्लिशिंग टाइटल का मतलब, सुनो, फिल्म फेयर की कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया बेनेट कॉलम कंपनी का टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिशिंग टाइटल. दे कैन रिकॉर्ड दैट. जो नाम बना है कंपनी को वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज दे कैन नॉट कैलकुलेट द कॉस्ट. 50 साल से उसका नाम चल रहा है, कॉस्ट निकाल सकते. सर परचेज किया है तो यू कैन रिकॉर्ड, बिकॉज देयर इज अ प्राइस पेड. समझ में आ गया? लेकिन और भी बाकी है, उसकी बाजू में ब्रांचिंग है. ठहर जाओ जरा. एवढा कैश में एसडी क्या है वो? परचेज प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेस, अदर एक्सपेंसेस. That is more important again. तुम्हारे initially it was, it's died up. The time to remove it also, yeah. Remove होने का भी मुझे time नहीं है. मैं सो रहा हूँ time. मैंने वो highlighter लगाया था, सब दिख रहा होगा. It was initially looking like, it was like obvious, looking like very obvious. ऐसा means you could have caught the attention of anyone. It's like that. Huh? No, not that. But it was looking, you have applied something, came it. And you applied very temporarily. It was very clearly identified. Some you came running here and you applied it like that.
So give me some powder in the hand. How I'll apply it? I'll take it, I'll rub it like this, and apply it very smoothly, not like that. Put it and I came back. एक्चुअली मैं ऑफिस ऐसे ही जाती हूँ, आप मुझे देखते नहीं हो ना, क्योंकि मैं सुबह में आ रही हूँ तो I'm coming this from home, I'm just normally काजल लगा के. But you go very fast like this. But when I'm to office, I am dressed. But I heard what normally girls do, they take their makeup box in the pocket and purse, and they do it in a very, maybe while they're in the journey and all, they silently do it. That can be the best possible manner they can complete the process. Very possible. I never do that. People do it. My sister do it. She's in college. She normally take it in the rickshaw and start applying it in the rickshaw only. मैं कभी भी travel में मैं मेरा मेकअप नहीं कर सकती, कभी भी नहीं. There's a first class ladies dabba, you know. कभी नहीं. वो हिलता कितना है? How can you even apply anything when in that condition? I don't even do it. But if I'm not wrong, in ladies dabba, these women are very rude behavior, no? They quarrel or not. मतलब ऐसे कोई सेल्समैन अगर गलती से फर्स्ट क्लास में घुस गया हाँ. तो उसकी तो लग जाएगी. अभी उस दिन पता नहीं कोई अधेड़ो कोई अंधा था, somebody when I'm going from here in the first class, तो you know he was selling that पता है वो fancy अगरबत्ती है ना. वो वाली pencil, हाँ, light वाली pencil. 5 rupees, you know. Yeah. So he came in. So he claimed to be blind, obviously. So when he got in, so everybody in the first class was screaming at him. That boss, it's the first class, and you are not supposed to get inside over here. मतलब usually वो फेरी वाले फर्स्ट क्लास में आते नहीं, सेकंड क्लास में रखते हैं. तो वो उसने से बोलता है कि मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे लगा मैं सेकंड क्लास में चढ़ा. बोलते देखो यहाँ चलने हो रहा है बराबर, तो तू अंदर. They can count money also. हाँ. और जब ट्रेन में घुसना था तो तू अंदर है. उसको बोला अगले स्टेशन में उसको उतारा. तो उतरेगा नहीं तो धक्के मार के उतारेंगे, शराब से उतारेंगे. They're so rude. But what about the fighting going inside? They are frustrated. I have seen many times. No, they are frustrated souls. हाँ. यार मतलब वो ऐसे लगे ना, चलो उसके घर से उसकी बीवी से उसके पति से झगड़ा करके आ गया ना ट्रेन में, जब कहीं पे निकाल. Which type of women are these? They may be working. All are working. A type of aged. They are all mid-aged, you know, maybe early 30s and you know, The fight. mid-30s होंगे. Yeah, worst is maximum they will be early 40s. Not like more than that. But I have seen everybody cribbing in the train. मतलब कोई ना कोई अपने I don't know क्या zone से आया है, सब frustration train में लोग. कोई चढ़ता है, किसी का पैर लगता है तो ऐसे गाली देते हैं जैसे कि तेरे से तेरी किडनी मांग ली उन्होंने, ऐसा लुक देते हैं. And they on the contracting भी करते जबरदस्त. If suppose she tells something bad to someone, वो कॉन्ट्रैक्टिंग भी एकदम जबरदस्त रहेगा उसका. नहीं उधर तो होता है, पर यहाँ पर इरिटेटिंग बहुत है. इनका फास्ट होता है सब बहुत सारा. जेंट्स में एक टाइम के बाद होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. एंड हियर दे quarrel till lot and many times. अरे the quarrel will be on till one of the two is not out of the train. सही बात है. वो मतलब ऐसा एक जैसा पॉइंट आएगा और you'll be so frustrated. तो रैंडमली उनके ट्रेन के डब्बे पे देखेगा, रैंडमली गर्दी के टाइम पे झगड़ा चलता ही रहेगा एकदम. Somebody or the other is all of interest. सही बात है. मेरा एक फ्रेंड था जो कंडक्टर था ट्रेन के अंदर, तो उसने मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताया था कि इनके एक डब्बे में ज़्यादा झगड़ा होता है, हमारे कंप्लेंट आती है. I was once traveling to Mulund to my colleague's place. His mother passed away though. So I got the दादर से वो सेंट्रल रेलवे की ट्रेन Very bad. पड़ती है ना वो. तो मैं दादर बहुत बेकार. मैं चढ़ तो गई, फिर एक तो मैं चढ़ी and I was just standing very आगे because I didn't know कि दादर के कितने स्टॉप के बाद मुलुंड आता है. I didn't know which side मुलुंड will come, so I The name of stations are very dangerous. हाँ. मैं रुकी थी and लोग ऐसे चढ़ रहे हैं अंदर ट्रेन में, कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है, क्या कुछ हो रहा है. I was so petrified कि मुझे इस तरह nobody is giving you a smiling face कि मैं उसको पूछूं कि बाबा मुलुंड किस तरफ आएगा, because जो रोज ट्रैवल करता है उसको तो पता होगा कहाँ आता है. कोई जहाँ फिर ऐसे फाइनली कोई बेचारी लेडी अंदर आई, शी वाज हैविंग स्माइलिंग फेस, तो मैंने उसको आई टुक द गट्स टू आस्क हर. आई सेड आंटी मुलुंड किस तरफ है. बेटा डोंट कम दिस साइड, दिस टाइम हियर होगी, यहाँ से अंदर मत जाना, अंदर से तो बाहर नहीं आ पाओगे. ओके थैंक यू आंटी. You should catch Thane train. Because Thane trains are very frequent to Mulund. Means Dadar to Thane and all. So there's the थाने की होगी शायद से. नहीं, the capacity start reducing. Diminished WD method. Correct? If you catch Kalyan and all now,
They start increasing, bulging. Land. Huh. And you should never get down at Diva station, in Mumra station, after evening 6 o'clock. Never get down it. My colleague gets down at Diva. Your? My colleague, Huh? मतलब she stays at Dombivli, लेकिन वो दीवा में जब उसकी बहन रहती कुछ तो वो हमेशा पहले दीवा तक जाती फिर डाउन वापस वो But Diva is a worst area. why After 9 o'clock, you won't find TC over there and staff over there. All are absconding because of a lot of murder taking place or pickpocketing taking place in Diva station. Diva is a host of all gundas. It is well known, very old, not now. Diva and that Mumra. Mumra has become poultry farm now. मेरे को तो वो So idea कल हम लोग का 7 बजे होगा. मेरे को तो सेंट्रल लाइन का कुछ आइडिया ही नहीं है Don't go. मैं तो आज सुबह ही घाटकोपर गई थी Don't go. I feel like पासपोर्ट की कमी है वरना घाटकोपर तो is like a separate country only altogether ऐसा ऐसे घाटकोपर के लोग तो स्टैंड आउट है डिस्टिंग्विश करते हैं ये घाटकोपर Even Virar Vasai also. Means we don't like them. I don't like them. I don't like anything on the central route. I just remember that when I gave my driving test, when I was learning how to drive, so मतलब after getting the license and all, जब when I was learning it on my own car, तो मैंने एक ड्राइवर रखा था तो उसने मेरी लास्ट जो मेरी टेस्ट थी ना ड्राइविंग की that was driving on the streets of घाटकोपर. उसने बोला तो मुझे घाटकोपर में किसी इंसान को किसी व्हीकल को किसी पत्थरे को ठोके बिना तू ये मार्केट में चला के मारा तो तू कहीं पे भी ड्राइव कर सकती है. उसने मेरा लास्ट टेस्ट वहाँ पे लिया था. उसने मुझे घाटकोपर की गलियों में रास्ते पे छोड़ा. बोला था इधर से ऐसे ऐसे चल ड्राइव कर गाड़ी और बाहर निकल. If it is Mumra, then you will never come back. The vehicle will be lost. अच्छा, ये कॉपी हो गया? Second suspense I'll open. Sir, internal generated, these are banned. You can't calculate the cost. Then what is recorded? Any type of intangible asset internally generated which requires detailed research and development. वो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप. Like satellite program, like patent of medicine, drug, very blockbuster drug, correct? Like inventing a new mobile design, yes, proved already many years. Like patent of a drug, ये अचानक नहीं होता है, अचानक ही नहीं होता, but take years to come out with a very branded patent. Satellite program, ठीक है. अब एक बात का ख्याल रखना एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में. अगर वो रिसर्च से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, रिसर्च में यू नेवर कम आउट विद द प्रोडक्ट, और अगर वो डेवलपमेंट एरिया है, सबको समझ में आ रहा है बराबर से? रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज है. अगर रिसर्च का फेज है बेटा, तो उसको पीएनएल में चार्ज करना है, बिंदास आंख बंद करके. सर डेवलपमेंट है तो उसको कैपिटलाइज कर सकता है, एक अजम्पशन पे कर सकता है कि इट विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, एंड दैट इज नोन एज एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया to be met. If you could not meet the asset recognition criteria, we cannot record an intangible asset. ठीक है? Next, amortization. Sir, you can record this intangible. How you can record this? You can record this also. Correct? ये P&L में जाएगा. सर इससे रिलेटेड कोई खर्चा क्या करना है? इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा P&L में जाएगा. You can't capitalize it. Advertisement ये सब P&L में जाएगा. Let's talk about amortization. Depreciation मतलब है ना, हाँ. Amortization.
ठीक है, सर ये डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बोलो। डेवलपमेंट फेज मतलब टिल द फेज In the exam, normally you're not required to identify the phase. They will give you in the exam. But then also I'll tell you, technical feasibility of any process, technical feasibility, when it get over, एक दवाई बना रही है तू दवाई बनाने वाली कंपनी है सिप्ला, 24 hours they had got branches and labs working like day and night for coming out with new drugs. आज बड़ी बड़ी बीमारियों के जितने भी ड्रग्स हैं ना, एक जमाने में सारे के सारे थे ही नहीं ना। ये जितने भी ब्लॉकबस्टर ड्रग बने, आपको पता है कई कंपनियों में अगर ड्रग पैदा हो गया मार्केट प्राइस ऊपर चला जाता है। सपोज यू इन्वेंटेड विद अ कैंसर ड्रग, कैन बी क्योर्ड इमीडिएटली विद इन 3 months, क्या बिजनेस चलेगा आपका, दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड। लेकिन डेवलपमेंट फेज, रिसर्च फेज नहीं, टेक्निकल अचीवमेंट होता है। टेक्निकल, मान लीजिए ड्रग बन गया, लेकिन ड्रग बनने के साथ बेच नहीं सकते हो, उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, फिर उसका मंकी एनिमल ट्रायल चलता है, वो सक्सेस होना चाहिए, फिर पायलट ट्रेन, हाँ वो सब डेवलपमेंट फेज में आता है। तो रिसर्च में क्या आता है? रिसर्च में यू योरसेल्फ हैव डन समथिंग एंड यू केम आउट विद द प्रोडक्ट, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, एंड सपोज यू हैव इन्वेंटेड ए पर्टिकुलर रिसर्च दैट इज नाउ कन्वर्ट टू अ गुड प्रोडक्ट। अब तुम मार्केट में बेचने के पहले गवर्नमेंट को बताओगे, इंडिया गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, सब जगह बेचना है ना आपको, तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्पाइसेस पर उसको चेक करते हैं, ब्लैक मैन, व्हाइट मैन, ग्रुप ऑफ दिस पीपल, ग्रुप ऑफ दैट पीपल, अलग अलग करके उसको 2 साल उसको डेवलप करने लगता है। तुम किसी से पूछना, कोई भी ड्रग 2 साल मार्केट में 2 साल के बाद आती, वंस यू गेट अ क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो 2 डेवलपमेंट फेज होता है। डेवलपमेंट फेज में हम उस रिसर्च को और एक मार्केटेबल वैल्यू वाला बना देते, करेक्ट। अब सपोज तुमने सैटेलाइट प्रोग्राम बनाया, एक कच्चा प्रोग्राम बना के देखा, हाँ चल गया, छोटा सा एक लाइट प्रोग्राम, अब फाइनली प्रोग्राम बना दिए, तो दैट इज डेवलपमेंट फेज। लेबोरेटरी फीस, टेक्नीशियन फीस सब कैपिटलाइज करने, मटेरियल लेबर सब कैपिटलाइज करने। नाउ आफ्टर दिस वी हैव डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। हाउ विल amortize intangible asset? Very simple. Divide this in 2 parts. Stock membership कार्ड याद है? हाँ, divide it in 2 parts. Number 1, Number 2. पहला पोर्शन जो है ना ये, उसमें हमें इंटेंजिबल की लाइफ देखनी चाहिए, कितनी लेना चाहिए, और सर ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सुनो, प्रायोरिटी वन, टेक द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ। फिशिंग राइट 6 years कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ। अगर वो नहीं है तो क्या लेना चाहिए, एस्टिमेटेड लाइफ इन द इंडस्ट्री। सर वो भी नहीं मिला तो, अगर कोई भी पॉसिबिलिटी सब में नहीं दी गई है, इनफाइनाइट लाइफ है, तो आपको मजबूरन 10 years लेना पड़ेगा इनडेफिनेट लाइफ के लिए। अगर लाइफ प्रूव कर सके तो लाइफ ले लो, ना प्रूव कर सके तो 10 years आएगा। डू यू नो स्टॉक मेंबरशिप कार्ड इज डेप्रिशिएटेड ओवर 10 years, इट डजंट हैव अ लाइफ, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ। ये एग्जाम में भी आके गए, 10 से डिवाइड करने का। तो और कौन से एसेट है, ब्रांड, मैं देखो 3 साल के लिए ब्रांड यूज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, तो 3 साल आएगा, फिर 10 साल ले आएगा। मैंने आपको परमानेंटली ब्रांड दे दिया तो 10 साल आएगा, समझा? नहीं सर इसका ब्रांड खाली 6 साल चलेगा मार्केट में, एस्टिमेटेड, तो 6 साल लेना। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। मजबूरी है ना, मजबूरी तो यहां रहेगा, बड़ी मजबूरी आ गई तो यहां। मेथड कौन सा होगा डेप्रिसिएशन, WDV है। प्रायोरिटी वन, 2, 3। प्रायोरिटी 1 क्या रहेगा पता है, द मेथड विल बी बेस्ड ऑन द कैश फ्लो रेशियो। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, सपोज आई बॉट अ मोशन पिक्चर, राइट। अब मोशन पिक्चर में पहले साल में थिएटर में बेचकर पैसा कमाएगा, बाकी का नेक्स्ट ईयर गांव खेड़ों में, फॉरेन में 80:20 हो गया।
Production ratio, possibility 2. I purchase a technical know-how, but उस technical know-how में production में कितना बना सकता हूँ? सिर्फ 6,000, सेकेंड ईयर 3,000, फिर 1,000, फिर 1, तो 6:3:1 का रेशियो है। असल अगर ये रेशियो नहीं मालूम है तो सबसे बेस्ट आंसर, कुछ भी नहीं मालूम तो स्ट्रेट लाइन इक्वली डिवाइड कर देने का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर रहेगा, ये हमेशा दोनों आखिरी वाली 10 और SLM विल बी ऑलवेज सपोज टू बी मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लास्ट स्टेप रहेगा। आप आर यू गेटिंग एवरीवन? अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन और सैल्वेज वैल्यू की। कैसे लगा चैप्टर? Just given the question, टेक इट, आई हैव नो प्रॉब्लम। फिशिंग राइट, and if not, आई परचेज फिशिंग राइट 1 लाख फॉर 3 years। गवर्नमेंट ने बोला वापस जाने के बाद 2,000 रिफंड ले लेना मेरे से, सैल्वेज। अगर नहीं दिया है तो कुछ अज्यूम करना है। नहीं, जीरो, इंटेलिजेंस में जीरो। कैसा था चैप्टर? एकदम इजी स्टेप। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको पूरा रट लेना पड़ेगा ढंग से, फिर ही समझ बट पॉइंट्स आर वेरी कॉन्साइज।